हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आप सबका ट्रेड टॉक्स में स्वागत है। ये ट्रेड टॉक्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ जीजेएस वर्चुअल। आज तक हमारे 3 सेशंस हो चुके हैं और आज का चौथा सेशन है। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वो मुंबई के एसपी जैन कॉलेज में प्रोफेसर है। तो एसपी जैन एक अच्छी रेप्यूटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है और उस इंस्टीट्यूट में फैमिली मैनेज्ड कंपनीज के लिए एक स्पेशल कोर्स सिखाया जाता है। तो मैंने उनसे फोन पे पूछा कि भैया, मैं फैमिली मैनेज कंपनीज में काम तो कर चुका हूँ, लेकिन आप लोग क्या सिखाते हो? तो उन्होंने मुझे जो कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि देखो, जब आप कहते हो फैमिली बिजनेस, सो फैमिली कम्स फर्स्ट। सो व्हेन यू से फैमिली कम्स फर्स्ट, व्हाट इज अ फैमिली? तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि व्हाट डज फैमिली मीन। तो फैमिली इज एन एक्रोनिम। तो कैसे कि हम लोग, फैमिली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली क्यों आते हैं दुनिया में, कैसे आते हैं? तो बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। सो फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, whether it is your business or in social life. So we always begin all our lectures and all our discussions by giving due respect to family. तो family का अर्थ क्या होता है? F for father, M for mother. So father and mother, ILY. Family is father and mother, I love you. कितना मैंने कभी सुना नहीं था इसका, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ देयर अपब्रिंगिंग। यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ कंफर्ट। तो जहां तक कि फैमिली का सवाल है, मैंने आपसे शेयर कर लिया, लेकिन आप देखते हो कि हमारे आसपास जो हो रहा है, द वर्ल्ड अराउंड अस इज चेंजिंग एंड इट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। तो अंग्रेजी में एक एक्रोनिम है वूका, VUCA। तो वूका मतलब क्या होता है? इंस्टेड ऑफ आई टेलिंग यू, देयर इज अ वेरी नाइस वीडियो। सिर्फ 2 मिनट की वीडियो है, मैं आपको वो दिखाता हूँ और जीजेसी टीम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो नंबर 1 सबको दिखाए। अनूप एंड जॉय, प्लीज प्ले वीडियो नंबर 1। Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. This is the world we call VUCA. A world where non-stop unforeseen turbulence invades, where events come at us with unforgiving speed, straining organizational odds of survival. In this world, reflexes must be rapid and on target. Who will survive? Only the fittest. Who will triumph? Only the agile. In business, VUCA underscores the importance of sense-making, analytical astuteness, readiness planning, risk management, and situational problem-solving. For banks, insurers, and asset managers, barriers are being eroded. Invaders from non-traditional industries are entering the atmosphere from different lands and vantage points. Regulation and risk is far-reaching, and never before has technology become so disruptive, so exponential, so quickly. How do you lead your people through change effectively? How do you derive value from the hurdles of regulation? How do you make sure you have the most capable people? How do you set the tone at the top? How do you get your HR function to lead you through a VUCA world? How will your people make or break your expansion into new territories? Do you have the answers? Know what you are up against. Caution against letting your guard down. Master, don't run from change. Adopt a growth mindset. Balance execution, response, and agility. Choose evolution over irrelevance. Include and enable your people to contend. In the age of innovation, their thinking is your advantage. Their energy, your salvation. Identify points of triumph. Derive value from regulatory hurdles. Recruit,
Arm and empower your most capable people. Develop leaders that can drive the revolution and conquer new territories. The future is VUCA. Now is the future. Get ready to revolutionize. उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैं 15 मिनट में नहीं समझा सकता था आपने 2 मिनट में समझ लिया। तो ये जब हम चेंज की बात करते हैं, तो ये जो चेंज है, चेंज इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, वेदर यू आर इन बिजनेस, सोशल लाइफ, एजुकेशन, एवरीवेयर देयर इज अ चेंज। तो ये वोका वर्ल्ड की जो बात करते हैं, तो इट इज एन एक्सटर्नल चेंज व्हिच इज हैपनिंग अराउंड अस। तो इसका प्रभाव हमारे वर्क प्लेस पे कैसा पड़ता है? सो वोका इज द कॉज, तो उसका इफेक्ट जो है, तो उसको भी देयर इज एन एक्रोनिम बाय द नेम ऑफ बोका। व्हाट डज बोका मीन? बी मींस ब्लड बाउंड्रीज। ब्लड बाउंड्रीज मींस क्या है? आज हमारे पूरी दुनिया कनेक्टेड है, द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड वी ऑपरेट इन डिफरेंट टाइम जोन्स। आप जब अमेरिका में किसी से बात करना चाहते हो तो आपको रात को जगना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, और बॉर्डरलेस बाउंड्रीज हैं। फिर when it comes to work, पहले जैसा नहीं रहा कि एक बॉस हुआ करता था। Now you are answerable to so many people. You are answerable to your colleagues. You are answerable to the shareholders. So that is what is called blurred boundaries. O, work overload. You are overloaded with work. हमेशा इतना सारा काम है, कुछ ना कुछ काम आता ही रहता है। So B is blurred boundaries. O is work overload, complexity. हमने वोका में भी कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी, which was external to your organization. See, within your organization also there is a complexity. The way we interact with people, हमारे equations कैसे हैं, so that is very complex. And the final A is addiction. Addiction to technology. We never are free. We are always distracted. कभी ईमेल आ जाएगा, कभी व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, कभी फोन आ जाएगा, टेलीविजन देखते हैं, सब कुछ इतना सब क्लटर है। तो एक हो गया वोका, जिसका रिस्पॉन्स है वोका। सो हाउ डू वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन? सो देयर इज अनदर आंसर टू इट व्हिच इज कॉल्ड एज वोका 2. सो व्हाट डज वोका 2 मीन? इफ यू हैव टू सर्वाइव इन दिस चेंज्ड और फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, यू नीड टू कीप योर सैनिटी। आपको विजन की जरूरत है। उसका आंसर है वोका 2. V means vision. U is understanding. You have to understand the external environment as well as your own environment. You have to understand your people, your family, your staff, everybody. And then C is courage. You need to have conviction and courage to take decisions. So finally, A, adaptability. You have to adapt. जो भी changes हो रहे हैं, उसको आपको अच्छी तरह से adapt कर पाओगे, तो ही आप इस दुनिया में टिक पाओगे। अभी जैसे शेयर मार्केट की बात करें, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप भी खरीदोगे, मार्केट नीचे जा रहा है तो आप भी बेचोगे। यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड, यू हैव टू अडैप्ट इट। तो ये हो गया वोका एंड बोका। अभी आज के टॉपिक पर आते हैं हम लोग। हमारा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हमारे जो पैनलिस्ट है, बेसिकली 3 टीम्स हैं, उनका मैं इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगा क्योंकि उन्हीं से कहूंगा कि अपने बारे में 2 शब्द कहें। लेकिन इतना कहूंगा कि 3 टीम्स है। एक टीम है बड़ौदा से, एसके गोल्ड की टीम है, वो हस्बैंड वाइफ टीम है, रूथा और सागर। दूसरी जो टीम है हमारी टीम रांका है, वो 2 कजिन्स हैं, तेजपाल जी और वस्तुपाल जी। सो इट्स अ फर्म, इट्स अ पार्टनरशिप फर्म, और 141 साल का उनको तजुर्बा है, उनका हेरिटेज है। तीसरी जो कंपनी है वो है डीपी आभूषण। इनका भी बिजनेस 80 साल से है और इन्होंने काफी तरक्की कर ली है। दे स्टार्टेड फ्रॉम रतलाम, और उन्होंने जो अपना रिटेल आउटलेट का जो साम्राज्य है राजस्थान में और एमपी में फैलाया है, एंड दे आर आल्सो लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये हो गई हमारे पैनल के बारे में 2 शब्द। और फाइनली आज का टॉपिक है,
बदलता समय बदलते रिश्ते, तो उस पर भी मैं कुछ ज्यादा कहने के बजाय एक वीडियो दिखाऊंगा, और वो वीडियो एक किताब पर आधारित है। एक किताब लिखी गई है, इंडियन फैमिली बिजनेस मंत्रास, और आप देख लीजिए, 1 मिनट की छोटी सी वीडियो है, बट इट इज वेरी इंस्पायरिंग. सो जीजेसी टीम, प्लीज प्ले वीडियो नेबर. Okay, there are some hats on the screen there, and you'll see that there are 7 segments. And one of the things about family businesses is there's a 3-circle model that was developed back in the 80s, which talked about owner, family, and managers. And what actually happens is, depending on where you sit in those segments, you'll have a different perspective. Your world will be where it is in that segment, whether you're number 1 or number 5 or number 7. And you always have to remember that the other people in the family system have got a different hat on to you. But if you're boss, and if you're next generation, or if you're a shareholder outside of the business not working, you're not in the same segment, and therefore you'll see things through your own lens. There's a great story in America which is a true story of a guy called Stu Leonard. He had a very large fruit and vegetable business in Connecticut, and he had a number of children working in the business who were in their, I think at the time, they were in their late 20s. And one of the sons he was particularly upset with, and so this guy was driving around Connecticut in a brand new red Ferrari, which is not a great idea, but anyway, he liked the Ferrari. And eventually his father got fed up with him, and he called him into the office at one of these big American partner-type desks, and he put a hat on that said, baseball hat that said, "Boss," he said, "Son," he said, "you're fired." He took the hat off and then put another hat on that said, "Dad," and he said, "Son, I hear you've been fired, how can I help?" And I think that is the challenge of family, because we all wear different hats at different times. And so long as you know what hat you're wearing and in what context you're wearing it, it means that you can get things done and things discussed in a different way. Okay, there are some... Okay, I think आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा आज टॉपिक जो है बदलता समय बदलते रिश्ते, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी मिल गई होगी, और आगे की जो जानकारी है वो देने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा एसके गोल्ड टीम्स, जो बड़ौदा से है. सो बेसिकली आई वुड इनवाइट देम. मैं उनको पूछना चाहता हूँ शुरुआत में कि अपनी कंपनी के बारे में कैसा स्ट्रक्चर है, क्या एक्टिविटीज है, उसके बारे में हम सबको जानकारी दी जाए. सो प्लीज स्टार्ट प्रूथा एंड सागर एज अ टीम. Hello everyone, good afternoon. I am Sagar Soni, owner of SK Gold. Basically, we are the manufacturer, wholesaler and retailer of the gold and diamond jewelry. We have started expanding our retail outlets from 2012. So right now we have 2 retail outlets, and in short time, by 2022, we are planning to expand our retail outlet by 5 in Gujarat. तो बेसिकली पहले क्या था कि पहले कोई भी कस्टमर बाय करने आता था तो they are buying jewelry as a asset, but now I see the time change, the millennials are involving in the jewelry buying. So now people want design, people want brand. So basically we are trying to build our brand, and we are very design centric brand, so we can connect to the millennial of the country by our design. We have 2 language, design centric brand and hello. Yeah, we can hear you, Sagar. Yes. So as a family jeweler, our marketing is done by our exclusive customers. So we are that kind of brand right now. Oh, great. तो देखिए सागर, नॉर्मली कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, तो हम आपको रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रूथा से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप, you are the one good thing about
SK Gold team is the fact that both of you are millennials. तो जब पूरी दुनिया millennials के बारे में बात कर रही है, क्योंकि majority of the world's population is millennial, तो millennials की जो choices हैं, वो आपसे ज़्यादा अच्छा कौन समझ सकता है? तो as millennials, आप इस industry में आने के बाद क्या सीखे, नंबर 1, और इसमें आगे आप कैसे बिजनेस चलाना चाहते हैं, इसमें क्या बदलाव लाना चाहते हैं? So Prutha, please begin. Yeah, thank you, Anil Bhai, for such a lovely introduction and setting the context. So, as you talk about millennials, yeah, everybody want something new every day. If someone, आज कोई हमारे वहाँ पे customers आते हैं, clients आते हैं, they might have seen some designs. Probably the next month, the same people will come to your store. They would not like to see the same patterns and same designs, right? So basically, every day demands something different, new. So this jewelry industry needs really innovation, creativity, where we can upgrade the level of a designing. हाँ, હું તમને શું પૂછવા માંગુ છું, we can speak in Hindi, Gujarati, English. Okay. आप इस इंडस्ट्री में नहीं आई हैं, मेरे ख्याल से 2-3 साल हुए, तो आप जो पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती थी, अभी आप खुद के बिजनेस चला रही हैं, तो आपकी इनिशियल जो लर्निंग्स है उसके बारे में बताइए कुछ, और आपका जो कंपनी का गठन कैसा है? आप दोनों तो यार सेशन में शामिल हुए हो, लेकिन आपकी कंपनी चलाता कौन है, कैसे स्ट्रक्चर है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। So our structure is basically my father-in-law is managing manufacturing unit, and Sagar is taking care of retail stores. I particularly taking care of the division of designing and social media marketing. We are the third generation. You are third generation. Yes. And so what kind of adjustment you had to do, because coming from a non-business family and joining a business family, so how did you go about doing it? Getting adjusted to the new environment? Yeah, so I belongs to HR profession, and I have done my master in human resource management. I do not have a background of jewelry industry, but being with Sagar, I have learned so many things, and definitely one thing which inspires me to do things differently. Every day demands a different view. And especially family jewelry mein acceptance, adaptability, adjustment matters a lot. One should have a very good team player to make the things happen, make it successful. हम कुछ भी डिस्कस करते हैं, we build a strategy, we build a business model. So if I generate 10 ideas, we put 2 heads together, we can able to generate 20 ideas. And that's the beauty of family jewelry business. Now I would like to invite Ranka team from Pune to introduce themselves and share how they do business, how their business is structured basically. So please come forward. Sure. So I'll be, hi guys, I'm Tejpal here. So I'll be taking this. So we are a 141-year-old company, and we are the 7th generation into this same business. We started from almost 100 square feet. Now we contribute to almost 150,000 square feet of retail space in Pune. And we would have a staff strength of around 1,200 people. We have a very simple constitution in place with all the rules, the do's and don'ts, which we as youngsters we need to follow. There are 6 youngsters who are actually looking into the core business, and we do our work individually. We do not interfere in anybody's work on day-to-day basis.
but we have marketing and branding strategies which are in common. So this is the basic structure we follow. Astupal ji, would like to Yeah. hear you. So Anil ji, as you rightly said, change is the only constant that is happening. So we see that the change internally has to be much faster than the change happening outside. Otherwise, the end is very near for you. Yes. So for family businesses, when you have that heritage of legacy, so you have this, it's a promise. We are into a business where we are the caretakers of the business, and we have to manage it so well and hand it over to the next generation. So this is how I call legacy. Legacy I call as a big, huge tree with deep rooted stems, and branches all around. So I did a small course on family businesses, which I would like to share the highlights Yes, of please. the course. Yeah. Yes, please. So the biggest risk in a family business is usually a leadership risk. As family owners, we decision would be right. See, on the board, there are independent directors overlook decisions of that. So in business, what changes I did on my level, I introduced a family friend as an independent director on I think there is some connectivity issue. आपकी आवाज थोड़ी कट रही है. I think there is some connectivity issue. Yeah, even I cannot hear him. So till the time his connection is sorted out, you can continue that conversation. Tejpal ji. So, yeah, so So as soon as his connectivity is back, we will ask him to join. तब तक आप बात कीजिए. Sure. So we'll have a partnership, we'll have a proprietorship, we have private limited, we have everything in our group. But the best part is that we don't interfere in anybody's work. But the basics and the bigger model is that we follow one branding activity. Okay. So got it. तो देखिए अभी one unique feature about the global business is on a global level you will find that more than half of the global industry is owned and managed by families. Okay, but what happens in the family managed company is that everything goes smoothly till the second or third generation. After third generation, the business starts disintegrating. So what we find in India that the companies that have started as family businesses, only 30% have survived, but 30% which have survived are really doing wonders. So if you're talking in general, Tata is a family company, Ambani is a family company. If you're talking about Pune, look at Bajaj Group is a family company, Firodia Group, family managed concern. So when we're talking about the jewelry industry, I would like to share the case study of Cartier. See, how did Cartier start? They started as one-man company. So what happens is, when one person starts, he's a proprietor. He starts companies basically for various reasons. First thing is the family, घर का खर्च चलाना है, बच्चों की पढ़ाई है, माँ बाप की देखभाल है. But there are various options. आप कुछ भी चूज कर सकते हो, लेकिन आप जब ज्वेलरी चूज करते हो, एक पर्टिकुलर फील्ड जब आप चूज करते हो, तो उसके पीछे पैशन होता है. No business can start or sustain without passion. तो एक पैशन के साथ बिजनेस शुरू किया. सेकंड जनरेशन में क्या होता है, टिपिकली मैं बोलता हूँ कि हर बिजनेस में होता है, ऐसी बात नहीं है. It starts as a proprietary concern, then it becomes a partnership concern. Let's say Cartier and Brothers, बाद में Cartier and Sons हुआ, बाद में प्राइवेट लिमिटेड हुआ और फाइनली पब्लिक लिमिटेड. तो इस बीच में क्या होगा, अगर Cartier की जब केस स्टडी अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छा बिजनेस था. और वो तीनों भाइयों का बेसिकली जो मेन एक्टिविटी हुई वो तीन ब्रदर्स थे, एक पियर, लुई और जाक. तो उन्होंने बिजनेस इतना बढ़ाया कि पूरी दुनिया में उनका साम्राज्य था.
इंडिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स। तो उनका कैसा था कि जैसे आपने कहा ना कि एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करना, तो उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया कि एक कंपनी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक पेरिस में हेडक्वार्टर्स था, एक न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स था और एक लंदन में हेडक्वार्टर्स था। तो लंदन का भाई पूरा यूके और यूरोप, दे डिवाइडेड द टेरिटरी। अमेरिका का भाई था, वो अमेरिका का बिजनेस देखता था और हेड ऑफिस जो फ्रांस में थी वो अलग। तो उन्होंने क्या किया कि एवरीबडी वाज ओनर इन ईच अदर्स कंपनी बट दे हैड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। सो डे टू डे जो फंक्शनिंग होती थी हर भाई संभाल लेता। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होती थी वो लोग आपस में बैठ के तय करते थे। और उन्होंने फ्यूचर में आगे क्या करना है कि सपोज कोई भाई को लगा कि मुझे ये बिजनेस ज्वेलरी नहीं करना है, तो दूसरे 2 भाई होते थे जो थे, मतलब तो दे हैड द राइट ऑफ रिफ्यूजल। दे वर गिवन द फर्स्ट चॉइस कि मुझे मेरा स्टेक बेचना है और क्या आप लोगे। अगर वो नहीं लेते हैं तो बाहर बेचा जाए। और जैसा आप कर रहे हो बिल्कुल वैसा ही करते थे कि व्हाइल ईच वाज अ इंडिविजुअल यूनिट, दे हैड अ कॉमन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो लेकिन क्या हुआ कि 4थे जनरेशन में वो कंपनी पूरी डिसइंटीग्रेट हुई। लेकिन लुक एट रांका, दे हैव सर्वाइव्ड। आई एम श्योर यू आर डूइंग वंडरफुल थिंग्स बिकॉज टू सर्वाइव इन दिस 7th जनरेशन इज नॉट एन इजी टास्क। तो आपने एक जनरल जानकारी तो हमको दे दी, लेकिन थोड़ा सा डीप में जाके आप बताओ कि आपका ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है। अनलेस एंड अनटिल इट इज कॉन्फिडेंशियल, हाउ आर यू invested emotionally as well as in financially in each other's company? Because I believe you have 12 stores. So how do you demarcate your area of operation and ownership? So Vasubal, you like to take this? Yeah. So Vasubal, we are you are there? a group. Yes. Yeah, I'm there. I'm there. Am I clear? Yes. Am I clear? Yeah. We So- can hear you. Yeah. Yeah. So we are a group of we are 6 cousins looking into the business. So one group has a partnership, 2 groups has partnership model, one has LLP model, one has private limited model. So financially, if you say, we are nowhere entangled into each other. Ownership is totally separate. So we have this family culture and family brand, 2 separate entities. Okay. So as a group, we function together for, we are together for outsider, but internally we are all financially independent, but we function. Okay. So we all collectively work for the brand. So if you say all the marketing of the group is done together, all business decisions are done together. So when you say interpersonal relations, they are taken utmost care. We see that relations at the top level are maintained so well that they percolate well at the bottom also. So there's unity, there's a bond that is keeping the brand together in spite being so many members in the family. So that is a structure, and that is a core strength, we would say. Okay. With financial independence, everyone has got their, everyone has their niche areas to work into and work collectively as a family brand. So there's a passion for that we have formed. There's family governance also we have introduced, family constitution we have, do's and don'ts, what we have to do as a brand, what we don't have to do, how we are going to facilitate good communication between us. So all these small things have been taken properly care to take the brand to another level. Fantastic. So now can we move to DP Abhushan? Super. So Vasupal, एक DP क्वेश्चन था कि आप लोग जो करते हैं आप अंडर वन ब्रांड से करते हैं। आपने बताया कि आप 3 डिफरेंट कंपनी है, एक आपका पार्टनरशिप है, एक आपका LLP, थर्ड इज द प्राइवेट लिमिटेड। सो आपका ब्रांड इज ओनली वन राका ज्वेल्स, या आप एक ही ब्रांड से करते हैं? तीनों अलग अलग ब्रांड है आपके? नहीं, एक ही ब्रांड से करते हैं, रांका ज्वेल्स ही है। रांका ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, रांका ज्वेलर्स एंड रांका ज्वेलर्स LLP. Okay, great. But the understanding between the family is very, very good. So the understanding is much above than business and money relations. Super.
सो टीम डीपी, जरा आप भी अपनी कंपनी के बारे में जानकारी दीजिए, बिकॉज आई थिंक यू स्टार्टेड विद वन स्टोर। तो आपके जो फाउंडर थे उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा, उनकी क्या विजन थी और वो विजन आगे कैसे आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसमें क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए प्लीज। नमस्ते, मैं अनिल कटारिया, डीपी आभूषण, आप सबका स्वागत करता हूं। अनिल जी, डीपी आभूषण लिमिटेड लगभग 80 सालों से हम लोग ज्वेलरी बिजनेस में हैं। मैं 4th जनरेशन हूं और जब हम रतलाम में एक ज्वेलरी का छोटा सा शॉप लेकर बैठते थे, लगभग आज से 30 साल पहले मैंने बिजनेस ज्वाइन किया और उस दुकान को आगे बढ़ाने का एक विचार मन में आया। बाकी छोटे भाई थे वो एक जॉइंट फैमिली, पापा ये लोग 6 भाई थे और सारे जॉइंट फैमिली में थे। फैमिली बढ़ती है तो बिजनेस बढ़ना चाहिए। उसी ट्रैक को आगे बढ़ाते हुए जब 2000 में दादाजी के हाथों फैमिली का डिविडेशन हुआ, तो मैं और मेरे पापा और विकास भैया के पापा साथ में ज्वेलरी बिजनेस में रहे। मेरे पापा और मेरे एक अंकल है वो साथ में इंडस्ट्री में रहे। विकास भैया के पापा और बाकी 5 भाई जो थे वो सब साथ इंडस्ट्री में भी रहे और ज्वेलरी में साथ में रहे। डीपी आभूषण लिमिटेड डीपी ज्वेलर्स मदर है। आज से लगभग 25 साल पहले हमने एक्सपांशन चालू किए। रतलाम में हमारा छोटा शोरूम था, लगभग 200 स्क्वायर फीट में चलता हमारा ज्वेलरी का शॉप चलता था। उसको हमने कन्वर्ट किया एक छोटे शोरूम के रूप में। उसके बाद जब विकास भाई के ब्रदर संतोष भाई, मेरे ब्रदर संजय भाई, ये सब जब एजुकेशन कंप्लीट करके ज्वेलरी में आए तो हमको लगा कि जब परिवार इतना बड़ा है तो एक ही लाइन में क्यों रहना। हम लोग इंडस्ट्री की ओर डाइवर्ट हुए। विकास भाई के ब्रदर प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी हैं, स्टील इंडस्ट्री में भी है, मेरे ब्रदर हैं, हम लोग फैशन में भी हैं, साड़ी में भी है। बट डीपी आभूषण अलग ब्रांच है और इसमें विकास और मैं दोनों साथ में काम करते हैं। हमारी आज 7 ब्रांचेस हो चुकी है। 2010 में हमने अपना पहला रतलाम के बाहर स्टोर इंदौर में स्टार्ट किया था। 2012 में हमने उदयपुर स्टार्ट किया। 2015 में हमने भोपाल स्टोर स्टार्ट किया। देखने में लगता है बहुत स्लो हम लोग आगे जा रहे हैं, बट हमको शुरू से हमारे पापा का और हमारा था कि हम बिल्कुल मजबूत होकर ही आगे बढ़े। ऐसा नहीं आप एक साथ 6-8 स्टोर खोल दें और फिर इनको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो। देन हमने भोपाल के बाद में लास्ट ईयर 3 साल पहले हमने हमारा इंदौर स्टोर है उसको अपग्रेड करते हुए एमपी का बेस्ट ज्वेलरी डेस्टिनेशन बना डाला है और लगभग 14-15 हज़ार स्क्वायर फीट में एमपी का सबसे बड़ा हमारा फ्लैगशिप स्टोर इंदौर में है। अभी इसी साल हमने हमारे 2 नए स्टोर चालू किए हैं, उज्जैन और भीलवाड़ा। और फ्यूचर प्लान हमारे कोटा, बड़ौदा, दाहोद एंड बांसवाड़ा के पाइपलाइन में है। और हम लोगों का सीधा सा है कि अपना बिजनेस अपने कंट्रोल में होना चाहिए। एक बारीकी से हम लोग बिजनेस को पकड़ के फिर आगे चलते हैं। एक दूसरे को हम लोग कभी डिस्टर्ब नहीं करते। विकास भाई अगर प्लान लेके आए तो उस पर एक साथ सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो विकास भाई उसमें पूरा सपोर्ट करते हैं। तो उस तरह से हमारा ये पूरा एक तरफा आगे बढ़ रहा है। और हमारे 4 फादर्स, मेरे दादाजी बन्नालाल जी कटारिया, जिन्होंने ज्वेलरी को, रतलाम को एक छोटे से ज्वेलरी के लिए एक पहचान दी कि आज रतलाम एक बहुत बड़ा ज्वेलरी डेस्टिनेशन बन चुका है। हमारे आसपास के लगभग 200 की एरिया में अगर ज्वेलरी की बात निकलती है तो सबसे पहले याद किया जाता है। तो ये उन्हीं का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है। और आगे फ्यूचर प्लान क्या है वो आपको सारे विकास भाई बताएंगे क्या चल रहा है। ठीक है, हम विकास भाई से पूछना चाहेंगे कि एक्सपेंशन प्लान बताने से पहले मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आपका ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। क्योंकि बहुत सारे ज्वेलर्स होते हैं कि जो अपनी जर्नी एज अ प्राइवेट बिजनेस शुरू करते हैं, तो जो भी विजन होता है, जो भी प्लान होता है, ओनर के दिमाग में होता है, लेकिन वो कहीं भी लिखा नहीं जाता। क्योंकि क्या होता है कि वो
जो ओनर होता है अपने काम में इतने मसरूफ हो जाता है और बिजनेस भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो बोलता है चलो बिजनेस करते हैं, बाकी बाद में बातें होते रहेंगी। लेकिन आपका जो एक स्ट्रक्चर है, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, तो विकास जी जरा बताइए कि आपके फैमिली कंपनी है, आप उसको पब्लिक लिस्टिंग किया है, तो ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, और आपके जब शुरुआत की थी तो उसके विजन के बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, मैं विकास कटारिया, डीपी आभूषण लिमिटेड से। हमारा डीपी आभूषण सबसे पहले तो जब ये स्टार्ट हुआ था, डीपी ज्वेलर्स जो एक फर्म हुआ करती, एक फर्म थी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, हम लोगों ने इसको हमने बाद में इसको कन्वर्ट करके पार्टनरशिप फर्म बनाया था। पार्टनरशिप फर्म को हमने 2017 में हमने इसको लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया। देन फिर हम लोग इसको एक एसएमई पर हम लोग आईपीओ लेकर आए थे 2017 में। और 2017 में हमने जब ये हम आईपीओ लेके आए थे तो हम एसएमई पर लेके आए थे और हमने 25% हमारा इक्विटी हमने डाइल्यूट किया था। वो टाइम पे 75% जो था वो कंपनी अपना प्रमोटर ग्रुप के पास में था और 25% हम लोगों ने डाइल्यूट किया था। और अभी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं कंपनी की, तो फैमिली में अभी मैं सबसे छोटा हूं और मेरे ऊपर सारे बड़े लोग हैं। तो मेरे पापा अनिल भैया, संजय भैया, संतोष भैया, मेरे ब्रदर राजेश भैया, ये सब लोग एज ए प्रमोटर है कंपनी के अंदर। बट मुझे सबसे छोटा होने के नाते ज्यादा काम करने के लिए मिला, तो मुझे एज ए एमडी, अभी मैं कंपनी का एमडी में हूँ कंपनी का। और हम लोगों ने 2010 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सपेंशन प्लान। तो 2010 में अनिल भैया ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमने 2010 में हमने इंदौर ओपन किया, देन फिर हमने उदयपुर किया, भोपाल किया, और अभी रिसेंटली हमने पोस्ट को मतलब कोविड के बाद में हम लोगों ने 2020 में हम लोगों ने 2 नए स्टोर प्लान करे, उज्जैन और भीलवाड़ा। तो आगे भी हम लोगों का एक्सपेंशन प्लान है। हम लोग गुजरात में भी इंटर हो रहे हैं और हमारा महाराष्ट्र में भी है। एंड हम लोग अभी ई कॉमर्स के साथ में ई कॉम भी हम अपना एक लॉन्च कर रहे हैं। सो ये एक्सपेंशन प्लान है। और स्ट्रक्चर में अभी हम लोगों का इनिशियली जब आप फैमिली ऑन रहते हो तब आपका काम करने का तरीका बड़ा ट्रेडिशनल होता है। आप अपने पुराने तरीके से, वही जो तरीका होता है जो सारे ज्वेलर्स करते हैं छोटी दुकान से, या जो एक शोरूम जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं वैसे ही काम होता है। बट जब आप एक्सपेंशन मोड पे आ जाते हो तो आपको, और कंपनी हो जाती है, तो आपको काफी सारी चीजें टाइम के साथ में चेंज हो जाती है। जैसे आपने लिखा है कि जो आपका टॉपिक है आज का, बदलता वक्त बदलते रिश्ते, तो हमने भी काफी सारा बदलाव किया है अपनी कंपनी के अंदर। और हमने पूरी प्रोफेशनल टीम ऑन बोर्ड हम लोग लेके आए। हमारे पास में कंपनी में एज ए सीईओ कंपनी में है, हमारे पास में पर्टिकुलर रीजन को देखने के लिए रीजनल मैनेजर हम लोगों ने प्लान किए हैं। स्टोर पूरा इंडिविजुअली अपना एक स्टोर मैनेजर होता है, उसका एक पूरा स्टोर का एक हायरार्की होता है। स्टोर के अंदर हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है, एक स्टोर मैनेजर होता है, फिर एक फ्लोर मैनेजर होता है, देन असिस्टेंट फ्लोर मैनेजर होता है, देन फिर पूरा सेल्स टीम होता है। तो इस तरीके से हमने हर एक स्टोर का अपना एक स्ट्रक्चरिंग किया हुआ है। फिर बैकएंड टीम के लिए भी हम लोगों ने जो मर्चेंडाइजर होता है, मर्चेंडाइजिंग का भी जिस तरीके का एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। उसमें एक हेड मर्चेंडाइजर होता है जो गोल्ड का लगे, डायमंड का लगे, जो पूरा गोल्ड देखता है गोल्ड वाला, डायमंड वाला डायमंड देखता है। हम लोगों ने सिल्वर भी अभी 3 साल पहले से हम लोगों ने सिल्वर भी स्टार्ट कर दिया। इससे पहले हम लोग सिल्वर ज्वेलरी नहीं बेचते थे। बट जब आप ज्वेलरी की बात करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि यार कोई भी कस्टमर आपके पास में आता है तो वो किसी भी छोटी चीज के लिए वो बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हम लोगों ने 3 साल पहले हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हमें सिल्वर भी स्टार्ट करना है। तो सिल्वर भी ऐसे एक नई कैटेगरी हमने इंट्रोड्यूस कर दी है हमारे स्टोर के अंदर में, और उसके लिए भी हमने एक सेपरेट टीम प्लान करी है। तो हम कोई भी एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं, हम लोग ई कॉम भी नया लेके आते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी क्या आपके पास में मैन पावर क्या है। तो हम ई कॉम के लिए भी हम लोगों ने एक डिफरेंट टीम प्लान करी है जो टेक्नोलॉजी भी समझती है एंड जो ज्वेलरी भी। तो विकास जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया, और आपने ये भी कहा था कि आपकी जो स्टोर साइज है 2000 स्क्वायर फीट से लेके 15000 स्क्वायर फीट। जी। तो आपका पूरी स्टाफ, जो पूरी टीम है, कितनी स्ट्रेंथ है पूरी टीम? अभी हम लोगों के पास में 450 पीपल है, 450 लोगों की टीम है। 450। तो आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन मैं टीम रांका और टीम एसके गोल्ड से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उनको डीपी ज्वेलर्स टीम से कुछ पूछना है या उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर कुछ एडिशनल कमेंट या टिप्पणी करनी है तो प्लीज गो अहेड, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो विकास, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। सो आप जब लोकेशन डिसाइड करते हो कि नेक्स्ट स्टोर मुझे ये जगह पे ओपन करना है, ये जगह पे ओपन करना है,
So currently the economy is very down, right? And the scenario is very uncertain. So how you be confident to take a certain risk in this uncertain VUCA world specifically? राइट सो हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि ऑलरेडी हम जो लोकेशन हम लोग सराउंडिंग ही प्लान करते हैं. अगर कोई हमें बोले कि नहीं आपको क्योंकि जब आप एक्सपेंशन मोड रहते हैं तो काफी सारे लोग आपको सजेशंस देते हैं कि आपको यहाँ करना चाहिए, आपको वहाँ करना चाहिए, अलग अलग डिफरेंट सजेशंस आते हैं. बट हम लोग कोई भी नया लोकेशन डिसाइड करने के पहले ये देखते हैं कि वहाँ ब्रांड की रीच है या नहीं है, वहाँ से ऑलरेडी ब्रांड पे कस्टमर आ रहे हैं वहाँ पर, वो मार्केट साइज कितना बड़ा, वो हम लोग वहाँ पर क्या साइज का स्टोर से हमें जाना चाहिए, कितना बड़ा स्टोर हमें वहाँ पर ओपन करना चाहिए और कितना हम लोग वहाँ से बिजनेस मिल पाएगा. सो डिटेल स्टडी होती है. लाइक अगर कोई लोकेशन हम लोग सोचते हैं तो हम लोग उसको 1-2 साल पहले से हम लोग उसको ऑब्जर्व करना चालू कर देते हैं, वो लोकेशन को उसको समझना चालू करते हैं, वहाँ के कंज्यूमर बिहेवियर को हम लोग समझते हैं, किस तरह का कस्टमर है वहाँ पर और वो कंज्यूमर कहाँ पर अभी जाता है बाइंग के लिए और कितना % कस्टमर हमारे पास में भी आता है उसका या हमारे शहर में आता है. सो ये बेसिक क्राइटेरिया होते हैं हमारे डिसीजन लेने के. फैंटास्टिक. तो अपनी बातचीत अपन आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं. तो वास्तुपाल जी का कनेक्शन टूट चुका था, तो उन्होंने एक पॉइंट शेयर किया था हम लोगों के साथ कि उन्होंने एक कोर्स किया था आई थिंक स्विट्जरलैंड IMD में. तो बिफोर आई इनवाइट हिम टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, व्हाट डिड ही लर्न, I would also like to share my observation. आज की दुनिया में क्या हो रहा है कि हम लोग इतने सारे मसरूफ हो जाते हैं अपने काम में कि नई टेक्निक्स या फिर नई जानकारी, नई नॉलेज सीखने के लिए वक्त निकालना पड़ता है. और स्पेशली जो प्रोएक्टिव ज्वेलर्स हैं वो अपने टीम को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, पार्ट टाइम कोर्स करवाते हैं, वेबिनार में नॉलेज शेयर भी करते हैं, नॉलेज पाते भी है. मैं आपको एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो आपके पूना डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, रीजनल ज्वेलर हैं और दे आर आल्सो ओनर्स ऑफ द चेन स्टोर. तो उनका एक जो ओनर का लड़का है, इट्स अ जॉइंट फैमिली. सो द ओनर सन, आई मेट हिम, एक जगह मिला और वो मुझसे बात करने लगा. तो मैं उससे जनरली पूछ रहा था क्योंकि मैं उनको पहले कभी नहीं मिला था. तो उनके पिताजी ने कहा कि मेरे बेटे को थोड़ा सा आप गाइडेंस दीजिए. तो मैंने उसको पूछा कि बेटा तुम ये बिजनेस में आए हो तो कैसे, क्या ट्रेनिंग ली. तो उसने मुझे जो बताया बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है. तो उसने कहा कि जब मैं डिग्री लेके कॉलेज से निकला तो मेरे पिताजी ने कहा कि आपको कोई भी रेडीमेड गद्दी नहीं दी जाएगी, आपको पहले बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इसकी जानकारी लेनी चाहिए. तो उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने काउंटर सेल्स के लिए अप्लाई किया मलाबार ज्वेल्स, मलाबार गोल्ड एंड ज्वेल्स, जो भारत की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी. तो वहां पर वो बतौर सेल्समैन 4-6 महीने काम किए, लेकिन कभी बात तो छुपती नहीं है. तो लोगों को पता चल गया कि ये जो है लड़का, इसके फादर की खुद की कंपनी. तो बाकी सेल्स स्टाफ जो था वो उसको बायोडाटा देने लगे कि भाई हमको भी नौकरी चाहिए, हमारा कुछ कहीं करवा दो. तो कहने का मतलब जो होता है कि दिस आर सम ऑफ द वेज, क्योंकि अपनी जो दुनिया है ना, ज्वेलर्स की दुनिया, वो थोड़ी सी सीमित है. हमारा जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा ब्रॉड होना की जरूरत है. अगर कोई XYZ ज्वेलर है और जो ABC के पास जाना चाहता है, अगर उनका दोनों में आपस में संबंध अच्छे है तो बोल सकता है कि मेरे बेटे को ट्रेनिंग दिलवा दो. लेकिन अगर नहीं है और उसको पता चला कि अरे ये तो ओनर का बेटा है, तो उसको शायद कोई नौकरी देगा नहीं. तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किस्सा था. तो अब वास्तुपाल जी से जानते हैं कि उन्होंने IMD में क्या सीखा, फैमिली मैनेज बिजनेस का जो कोर्स किया. तो ओवर टू यू वास्तुपाल जी. तो मैंने आपको लीडरशिप के बारे में बताया और एक वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा ऐसा था कि फाइनेंस जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है बिजनेसेस फेल होने का. तो अपना डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, अगर हर बिजनेस ने समझ के ले लिया तो बहुत इजी रहता है. प्रॉफिट और कैश ये दोनों को लगता है एक ही है, मगर प्रॉफिट इज
प्रॉफिट इज जस्ट अ नंबर एंड कैश इज द रियल थिंग. कैश में क्या बोलता हूँ, कैश फ्लो क्या है अपने. आज अपना बिजनेस आज के जनरेशन में अभी प्रॉफिट तो आपको ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बैलेंसिंग फिगर करने के लिए कुछ भी कर देगा, या प्रॉफिट वुड बी ओनली फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ योर वेल्थ. मगर आपके बिजनेस में डेली बेसिस पे कैश फ्लोस कैसे है, आपको जो सेल से आ रहा है माइनस यू पे टू द सप्लायर्स, माइनस यू पे टू द एम्प्लॉयज, माइनस यू पे फॉर योर टैक्सेस, और कुछ बचता है कि नहीं. इफ योर कैश फ्लोज are negative, then it is a very very serious thing for any business to, it's an alarming thing कि आपको अभी देखना है कुछ तभी गलत है. Don't wait for the end. So ये बहुत important सिखाया हमने कि cash and profit don't take it as one thing. Most companies are more profitable but उनके पास cash flows ही नहीं है. So this is the biggest drawback what they. और एक सिखाया है कि whenever your business is good, आज के changing time में what you need is to एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट एट द सेम टाइम. आप जब भी बिजनेस अच्छा रहता है तो आप ट्राई करो कि आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए, एक्सप्लॉइटिंग योर करंट रिसोर्सेज. तो यूजुअली फैमिली बिजनेसेस में वो लोग डेवलपमेंट टाइमली करते नहीं है, सोते रहते हैं, एंड व्हेन द टाइम कम्स इट्स वेरी टू लेट. लाइक द ई-कॉमर्स थिंग व्हिच वाज एन अलार्मिंग थिंग. एवरी फैमिली owned business has to enter this e-commerce platform because we see it as the future. For family businesses of like us, what are the future challenges as we see? अभी जैसे आपके इंदौर में आपको ऐसे लग रहा है कि national chains आ रहे हैं, तनेश बोलो, कल्याण, मलाबार, these jewelers from the south, they are coming and eating into our territory. So what we have to look into, what we have to see, कि how can we compete them, because we have been the masters into our field, our areas, and we cannot allow an outsider to come and eat into our customer base. So there is too much of competition. तो उसके लिए strategies आती है. Strategies are very important. Strategy में भी ऐसा रहता है कि every business house or every jewelry house will have a sweet spot. Sweet spot is such कि जहाँ पे ऐसी क्या चीज है जो आप आपके competitor से better दे सकते हैं. So that is called as a sweet spot. जैसे Ranka Jewelers is known for, मैं बोलूँ कि we have big space, we have everything under one roof, we are the lowest on making charges, we are the lowest with diamond rates, barring everyone gives the same type of jewelry. So as a business, family business, you have to identify where you stand out from your competitors. So ये जो basics है business के, if you take them right, I think so your business can easily sail through and can go towards the growth strategy. So these were the basic learning points जो हम लोगों ने सीखा है. Fantastic inputs. Thank you very much. अभी मैं आप ही को पूछूंगा, टीम रंका को, आप दोनों मिलकर जवाब दीजिए कि आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया कि जब आप ई-कॉमर्स बोलिए, डिजिटल डोमेन में क्या होता है कि आप सब लोग बहुत बिजी होते हैं. तो आपकी जो आगे की पीढ़ी है, जेन नेक्स्ट जिसको कहते हैं, जैसा आपका फैमिली स्ट्रक्चर, बिजनेस स्ट्रक्चर में देख रहा था, तो आपकी जो वेबसाइट है उसमें मैंने देखा कि आपके जो भतीजे हैं मानव और श्लोक, वो भी बिजनेस में आ गए. तेजपाल जी की डॉटर्स हैं जो अभी पढ़ रही हैं, लेकिन वो उनको ग्रूम कर रहे हैं. तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए. और सबसे अहम मुद्दा ये है कि Gen X जो आज की पीढ़ी है, they are impatient and they are not, they have a different lifestyle and a different way of behavior. तो and they are restless, they want immediate answers. तो कैसा होता है कि वो अच्छे कितने भी पढ़े लिखे हों, there are two things. One is the skill and one is the attitude. You can acquire skills by doing good courses, but attitude is something which comes by संस्कार, आचार, विचार जो होते हैं, उससे जो आपका एटीट्यूड होता है. तो कैसा होता है कि जब एक फैमिली मैनेज कंपनी में कोई यंग बच्चा आके सीट पे बैठता है, तो आपकी जो लॉयल टीम जो होती है, दे आर वर्किंग विथ यू फॉर लेट्स से 20 years, 25 years. They may not be so knowledgeable, but they are loyal to you and they know their business very well. So this is a very soft issue. So I am going to raise a soft issue, and I would like even Putha, because she has an HR background, or even team DP, कि ऐसी सूरत में देखो, अच्छा आदमी अगर छोड़ के चला गया तो नुकसान किसका है? आप ही का है. तो किस तरह के संस्कार आप नई पीढ़ी पे
इनकलकेट करते हो, नंबर 1। और उनको बिजनेस, अगर ज्यादा आप उन पे नहीं करोगे तो they will not be interested in the business. So it's a thin line. So how do you empower them and how do you communicate your values? Okay? Every team member in our company is important. So I would like you and Tejpal ji to comment, and then we will also like to have the views of the other two teams. So please begin. Okay, so I'll take this Oswal first. So giving from my example, so I have twin daughters and both are studying in Boston. And so one is doing major in consumer psychology and one is doing entrepreneurship. Now the Wow. whole, so see, we need to carry a legacy forward. The next generation, and we are always worried कि next generation jewelry लेगा कि नहीं लेगा. तो हमको घर से पहले start करना पड़ेगा for these people that they should love jewelry. Yes, the styling, the design, the patterns, it's all going to change. So what I am doing at personal level is I am involving them in a lot of my day-to-day activities. So you spoke about the e-commerce business. So I have handed over the e-commerce business to one of my daughters and she's set it up. She's fighting, she's speaking to the people, she's speaking to the IT team, she's looking into the challenges, whatever the daily, and there are a lot of challenges. So she is tackling it one-on-one. Then we've entered into the data analytics of our group. So one daughter is looking into the data analytic part. She's communicating with the team. So in all this process, I think so somewhere or the other, they learn patience. They know that things are going to take time and things are going to happen in a manner. So the temperament, I have seen the temperament change. I have seen them taking responsibility and I'm seeing their inclination towards jewelry is increasing day by day. So this has been my share of getting the next generation into the business. This is the way I have taken it forward. Okay. And Vastupal, would you like to comment on your nephews? Yeah. My kids are still small. My son is in 8th standard, but still during his free time, I tell him, okay, you have to come and see, because we used to do during our days. I still remember, for me, I started working at the age of, I would say at the age of 15 or 16, when we used to go and help our dads, and the business was in our blood. So we were so passionate right from our childhood that we have to take this business to a certain. So with this comes again the organization culture. Culture is such a thing which we are building it very strongly. Every member of the team, every employee is so very much into this organization culture. If we don't allow anyone to write a culture, we have framed it on a wall. Okay, this is the system, this is the culture, what you have to follow. So that gives the employee the boosting to work, everyone work as a team. So this is how we are taking it ahead. हाँ, तो मैं जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि every new entrant, whether he is the owner's son or owner's nephew, has to earn respect within the company. तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पुणे के एक ज्वेलरी कंपनी है, उन्होंने अपने लड़के को 3rd कंपनी में ट्रेनिंग के लिए भेजा. तो जैसा आमतौर पे कैसा होता है कि इन प्रोग्रेसिव फैमिली मैनेज कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, तो उसमें चाचा मामा सब लोग काम करते हैं. तो पिताजी कभी भी अपने बेटे को खुद नहीं सिखाते, अपने भाई के पास जा, अपने चाचा से सीख के आओ, मामा जी से सीख के आओ. और मामा जी के पास 1-2 साल काम करेगा लड़का, वो बिकॉज ही हैज टू अर्न रिस्पेक्ट. पिताजी के साथ तो कैसा है, मतलब कुछ भी इमोशनल ब्लैकमेल कर लेगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा जो है बाप से बहुत डरता है, वो खुल नहीं पाता, लेकिन चाचा मामा को अपने कंसर्न्स बता सकता है. तो ये एक तरीका है. तो मैं स्पेसिफिकली क्यों पूछ रहा हूँ कि आपके जो भतीजे हैं दो, मानव और श्लोक, तो उनका कैसे ट्रेनिंग होता है, क्या कैसे इंटीग्रेट होता है पूरे बिजनेस में? So Shlok has done his designing from Milan. He's added another facet to our brand. The designer element was missing. So we have a lawyer, we have a CA, we have a doctor, we have somebody from marketing background. Now we have a designer also on board. So he is trained under his father. We all are trained under his father. That's my elder brother.
So he's a very strict man. I am also trained under him. Vastupal is also trained under him. So he's under the right hands. And he's doing wonders for us. And we are giving them enough authority to take decisions. And so we've given him all the marketing responsibility, which he's taking over. And we just give him a okay. He's allowed to do whatever he wants to. And we are of this opinion that it's okay if they make mistakes. It's better they make mistakes when we are around. So then later on, there's nothing to worry about. So we've given an open hand to the next generation. Okay, great. So I would like SK Gold team and DP team to share their thoughts on this motivation of their own family members, as well as motivating and training their staff. Because I believe DP Jewellers have so large team, and to get the proper talent in Rajasthan and MP is not very easy. तो एक के बाद एक अपने व्यू शेयर किए, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. तो Prutha, would you like to start, or Vikas ji, Anil ji, कोई भी शुरू करो. हाँ, Prutha ji, yeah, so I quite agree with what Tejpal and Vastupal is saying, that as in I have entered as a current generation in this industry, new to me. So the best thing which I got from my family is that of freedom, because currently we are at an experimental stage, right? So we do things and then we learn and we go back on the things and then we rectify it again and we try to improve it. So this is a very, very important to give a freedom to the people. Second aspect is I would like to point it out here is that people are very, very important, and that to right people at a right place. Because if I feel that I don't like a technical part of it, and I really would love to be in the designing field, and I forced to be in putting in a technical part of it, तो वो interest ही नहीं रहेगा, and that you will not succeed at the end. So the area of interest, aligning with the area of interest with your profession is very, very important. So I like designing part. I really love to build strategies, creating a business models. So I feel that I'm a good at it, and I'm enjoying doing it. So I think that correlation is also very important, कि जो आपको पसंद है and जो आप actual में कर रहे हो, that should be match. So Prutha, मुझे आपसे एक specific pointed question पूछना है. आप है ना HR डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं. Cadila is one of the very reputed companies. तो आप बताइए, you understand the value of talent. तो आपकी जो भी टीम है, मुझे पता नहीं कितने लोग काम करते हैं आपकी कंपनी में. कितने लोग काम करते हैं? Yeah, Sagar, over to you. Hello. Yes, in manufacturing unit we have 12 karigars, and in the sales team we have 8 karigars, 8 people of team right now. So जो टोटल आपके 20-25 लोग हैं आपके, yes, तो उसमें are you involving Prutha because she has an HR background? Are you involving her? Yeah, she's actually more creative and I am more analytical. So it's right balance. So who looks after the staff? That you answer. So yeah. So as you said, that talent is very important, and to retain a good talent, because market में बाहर दूसरे अच्छे offers देने वाले लोग हैं ही, right? It is about how you retain the best talent in your organization, because it is very difficult once you have built a trust, once you have a match that frequency with a people. फिर वो एक बार lose हो गया, उसके बाद you will onboard someone else new in the team. That may create some time, that may create some patch in between in your flow process. So I think retaining a good talent in your company is really very important. So for that, there are a lot of things we are doing, like engaging them, meeting them in a family, taking them out with their families, though they are workers or they are a sales representative, but it is important to engage them. Even we celebrate their birthdays also. So it is very important to
to make them as a family, you know. Okay, understood. So team DP, आपकी क्या राय है? तो अनिल आप बताएंगे? हाँ, हम लोग कर रहे थे बात प्रोफेशनलिज्म के बारे में। प्रोफेशनल्स जो है, जैसे हमारी बात हो रही थी कि अच्छे लोग एक तो मिलना मुश्किल है, मतलब तो फॉर मोटिवेटिंग पीपल लाइक आप फैमिली मेंबर्स की बात करें या आप नहीं, देखो दो चीजें, एक तो आपकी जो पूरी टीम है, एक तो आपके सारे आप सबसे छोटे हो, तो बड़े भाई या अंकल चाचा आपको कैसे मोटिवेट करते हैं, और आप क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तो आपने प्रोफेशनल्स को कैसे संभाल के रखा हो? फॉर मोटिवेटिंग इवन फैमिली मेंबर्स है या आपकी टीम है, आपके लोग है, मोटिवेटिंग के लिए मुझे जो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, फर्स्ट इज अर्निंग, सेकंड लर्निंग एंड थर्ड इज ग्रोथ। कि आदमी को पैसा तो चाहिए काम करने के लिए, बट सीख क्या रहा है, रोज आता है तो रोज कुछ नया सीख रहा है या नहीं, कि वही रिपीट मतलब वही चल रहा है, उसका मोनोटोनस जॉब ही चल रहा है। उसके कुछ नए आइडियाज होने चाहिए, उसको कुछ नया हमको रोज कुछ ना कुछ बताना रहता है। कि आप समझो कोई गोल्ड वाला है तो अभी गोल्ड वाले को कैसे हमको डायमंड के लिए शिफ्ट करना है, कि भाई अब गोल्ड तो बहुत अच्छा बेचते हो तुम, बट अब तुमको डायमंड भी बेचना है, डायमंड किस तरीके से बिकेगा, डायमंड के लिए क्या स्किल्स तुमको चाहिए। सो लर्निंग भी कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ हमें उसको देना रहेगा, एंड ग्रोथ डेफिनेटली जरूरी है कि हमें उसको एलिवेट भी करना पड़ेगा। कि आज एक आदमी सेल्समैन है तो उसको सेल्समैन से वो कोई स्ट्रक्चर आपने ऐसा बना रखा है कि आपके यहाँ पर आदमी काम कर रहा है तो उसको उसका फ्यूचर दिख रहा है। अगर उसको अपना फ्यूचर नहीं दिखेगा तो अगर 20 साल तक अगर आदमी एक ही पोस्ट पर है, वो सेल्समैन था, तो अगर 20 साल तक अगर वो सेल्समैन ही रह जाएगा तो शायद उसको भी लगेगा कि यार मुझे बेचना है, मैं यहाँ बेचूं या दूसरी जगह बेचूं, कहीं पर भी मैं बेच सकता हूँ। बट अगर उसको लगेगा कि मुझे नहीं, यहाँ पर ये कंपनी में मुझे ग्रोथ दिख रही है, मैं शायद हो सकता है कि मैं अनदर 5 ईयर 10 ईयर्स में मैं कोई अलग एलिवेटेड रोल पे मैं चला जाऊंगा। तो ये काफी जरूरी होता है एक अपनी टीम के लिए। नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। अच्छा, कोई कह रहा था बीच में, कोई बात कर रहा था। मैं ये मोटिवेटिंग के लिए मैं बताता हूँ, जैसा अभी आपने बताया, सीखना है तो पिताजी नहीं सिखाते हैं, चाचा सिखाते हैं, या पापा सिखाते, ताऊजी सिखाते हैं, या भाई सिखाते हैं। अभी मेरा बेटा रीजेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, एंड हमारा जो जितना मेरा काम होता है सारा उसको मैं बोलता हूँ, कुछ सीखना है तो विकास चाचा के पास जाके बैठो, वो तुमको सिखाएंगे। और मेरा बेटा लगभग जब भी इंडिया में रहता है, अभी लॉकडाउन की वजह से 4 महीने इंडिया में था, तो 4 महीने वो विकास भाई के साथ ही रहा, उनके घर पे ही रहता था। तो जो अपने बच्चे को हम सिखाते हैं उससे बेटर वो उसके चाचा से या टीम के साथ बैठ के सीख सकता है। क्योंकि अगर पापा के पास बैठा है तो उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो उसको किस तरह से समझाएंगे, और चाचा के पास बैठा है तो विकास भाई एंड माय सन आर बोथ बेस्ट फ्रेंड टू, तो दोनों दोस्त बन के सीख सकते हैं एक दूसरे से। अच्छा, ग्रेट। तो मेरे को अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा नाजुक मामला छेड़ना है, मैं छेड़ता हूँ उसको। देखो विकास भाई, आप सबसे छोटे हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी जो है सबसे बड़ी है। तो अगर ऐसा कभी होता है कि आपको लगता है कि ये डिसीजन सही है, लेकिन आपके जो बुजुर्ग हैं उनका शायद कोई अलग नजरिया है ना, तो उसमें कैसा होता है कि ये जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, जो प्रोसेस है ना, तो पहले कैसा होता है कि वन इज डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, फिर डिसएग्रीमेंट, फिर डिस्प्यूट, फिर कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बड़ा पेचीदा मामला है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर सही मानों में अगर ये कम्युनिकेशन नीड्स को एड्रेस ना किया जाए तो फ्रस्ट्रेशन आता है। तो उसका एक सॉल्यूशन क्या है कि देखो, एक्सटर्नल एडवाइजर्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, कि जो चाहते सब, उनके सामने सबसे अहम मुद्दा यह है कि कंपनी के भलाई के बारे में सोचें। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली बिजनेस कंपनीज, तो इनमें क्या होता है, इमोशनल एलिमेंट ज्यादा होता है, रैशनैलिटी कम होती है। तो जो बाहर के जो एडवाइजर्स होते हैं, सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एडवाइजर्स। वन इज द पेड एडवाइजर, जो कंसल्टेंट होते हैं लेकिन बहुत अच्छा वैल्यू ऐड करते हैं, और दूसरे जो कंसल्टेंट होते हैं जो आपकी भलाई चाहते हैं। तो जैसे अपन पुराने जमाने में, रामायण महाभारत के जमाने से ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, कि जो पूरा हित चाहते थे और दे वर रिस्पेक्टेड बाय एवरीबॉडी, तो उनकी सुनते थे। तो अब एक कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन सुनिए, बिकॉज इट इज वेरी रेलेवेंट। देखो, ये अपनी इंडस्ट्री है ना, उसमें तनिष्क 10 साल 15 साल लॉस किए,
और जो टॉप मैनेजमेंट थी उन्होंने डिसाइड किया ये कंपनी को बंद करो और उन्होंने मैकेंसी को अपॉइंट करा। सी टाइटन इज ऑल्सो लाइक अ फैमिली मैनेज कंपनी। वहां पर एवरेज जो बंदा है सीनियर मैनेजमेंट का 25-30 साल से है, तो दे आर लाइक फैमिली मेंबर्स। तो वो जो मिडिल मैनेजमेंट लेवल थी, मतलब जो ऑपरेशनली रिस्पॉन्सिबल थी, वो चाहते थे कि उन्हें एक और मौका दिया जाए ये तनिष्क को चलाने का। लेकिन जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इसको बंद कर देना। लेकिन कैसा है कि जो इट्स अ डेमोक्रेटिक सेटअप, राइट? तो बोर्ड ने सोचा कि अगर अपनी डिसीजन लोगों पे थोपेंगे तो शायद टीम डीमोटिवेट हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट को अपॉइंट किया मैकेंसी को, और उनको क्लियर कट बोल दिया कि हमको ये डिवीजन बंद करना। तो अभी जो मैकेंसी कम फी 1 करोड़ रुपया लेती है, समझा? 1 करोड़ रुपया लेती है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सोचा कि टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन नीचे कन्वे करने से अपनी भी क्रेडिबिलिटी होती है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा स्टडी किया और उन्होंने दे केम टू द कंक्लूजन कि ये बिजनेस जो है इसको और एक मौका दिया जाए। तो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन भेज दिया रतन टाटा जी को। अब रतन टाटा जी को कोई एम्प्लॉय पूछ नहीं सकता कि एक तो हाँ बोलो या ना बोलो। तो फाइल पे जो पूरी सीनियर मैनेजमेंट टीम थी बैठी रही, उन्होंने डिसीजन ही लिए। तो वन फाइन डे, बिकॉज मैकेंसी हैड द पावर एंड द क्रेडिबिलिटी, उन्होंने बोला इस मुद्दे को डिसीजन आज चाहिए, ये तो हाँ बोलो या तो ना। और अल्टीमेटली चेयरमैन सेड यस प्लीज गो। मतलब उन्होंने कहा कि हम आपको मौका देते हैं। तो जब ऐसी टाइप की सिचुएशन आ जाती है कोई भी आपकी फैमिली में, तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करते हो? एंड दिस क्वेश्चन इज एड्रेस टू ऑल टीम्स। लेकिन शुरुआत हम डीपी से करते हैं क्योंकि आप सबसे छोटे भाई हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी। तो डेफिनेटली काफी बार होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, काफी बार नई चीजें करनी होती है कि भाई स्टोर ओपन करना है, बट लोकेशन मुझे लगता है कि ये लोकेशन पे करना चाहिए, बाकी लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पर नहीं, हम लोग दूसरा लोकेशन हमको सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसे भी कई बार होते हैं। तो फिर म्यूचुअली सबको एक जगह पर लेके आना पड़ता है, सबको कम्युनिकेट कर ये डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ हमको इसी लोकेशन पर जाना है। और ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। कई बार होता है कि जो मेरे डैड का जो नेचर है वो बहुत डिफरेंट है। उनको तो जब तक आप पूरा लॉजिकली सारी चीजें नहीं बता सकते, तब तक उनको पेपर पे आप सब कुछ नहीं बता सकते कि हम जा रहे हैं और हमारा ये रिजल्ट के लिए हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, तब तक वो यस नहीं करते। तो उनको कम्युनिकेट करने का तरीका अलग है, अनिल भाई से बात करने का तरीका अलग है। सो डेफिनेटली आपको पूरी फैमिली में अलग अलग लोग हैं, सबको अलग अलग तरीके से आपको समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको शॉर्टकट्स पता है। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ कि जो एक्सटर्नल जैसे गुरु है, कंसल्टेंट है, इन्होंने आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया हो, ऐसा कभी हुआ है आपकी कंपनी में कभी? आई थिंक मुझे लगता है कि वैसा हम लोगों ने ट्राई किया था, 2-4 बार ट्राई करा था, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि अपने लोगों को हमसे बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता है, और उसको जानने में उसको इतना समय लगेगा जितना हम ऑलरेडी बिता चुके हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है। हम लोगों ने ट्राई जरूर किया था, बट हुआ नहीं। मे बी लाइक मैकेंसी जैसी कंपनी को हमने आज तक अप्रोच नहीं किया। सो डेफिनेटली अगर कुछ बहुत अच्छे लोग को अगर कभी ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट कुछ अलग होंगे। ओके, थैंक यू। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, दिल से दिया। तो टीम रैंका को मैं पूछूंगा। आई थिंक आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू। मैं द डिफरेंस इन ओपिनियन, जैसे मेरा और विकास जी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसीलिए है कि देखो, जब आप बिजनेस की बात करते हो और फैमिली की बात करते हो, फैमिली बिजनेस में इमोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड when you are talking about business, rationality is important. So I am asking the same question to Team Ranka. Who would like to take Vastupal or Tejpal? So I'll take this. So there have been n number of times there has been difference of opinion between our seniors and our generation. So V6 and my uncles. So first thing, even I have grown up with my uncles. I have not grown up with my dad. I have grown up with my uncles. That I've grown up with Vastupal's father. And Fateh Chand ji uncle. So I have grown up with them, and अभी हमारे काफी, I won't say conflict, but it's, I won't say stress, I will say good stress. तो जब हमारे disputes होते हैं, we all get together, and the end goal is benefit of the organization, benefit of the business.
and they are also in a very willing state to understand. So even the youngest in our group, that's my nephew, even he will contribute. And if it makes sense, everybody goes with it, even if I mean, maybe one or two may not agree, but if the majority is towards that, they will agree. The seniors will never say कि नहीं, it is my way or the highway. No. So there is a lot of harmony in the communication as long as it makes sense, and it's all in the benefit of the organization. I think so. It's a team spirit, and people accept the decision in our meetings. And we do have joint meetings. We do have every 15 to 20 days or a month. We meet once to discuss all the strategies, challenges, what are we expecting, how do we deal with these situations. So we keep coming up, and I don't see any challenge communicating with the seniors, and the seniors have taken a back step. They just give us support. Aap log karo, problem hua to hum hai. That's the kind of attitude they have with us. Fantastic. Yeah. Very good answer. So, I'm satisfied with what you have told me. Yeah. So Yeah, please. this is the communication channel what we have built over the years. So we have a separate group for business and separate group for family. So business updates are happening, you would say, like every hour. What's happening in the market? Who suppliers we should approach? What's new? What's not? So this is what keeps us. The communication keeps us intact. So general. See, this is for the family as well as business also. So general tendency of Indian mentality is, what, you approach your elders when the problem is above your head. So you have to start communicating. We have a very good communication process. We communicate every, we would say like every third day, periodical communication. So that helps us to discuss the problem in its initial stage. So that's helping to solve a lot of problems. Is there, we are always on the same pace. Okay, great. So after listening to you, I am reminded of a wonderful book. आप सब लोग उसे पढ़िएगा. तो किताब का नाम है द मेकिंग ऑफ हीरो, और वो किताब लिखी है सुनील मुंजाल. और आपको मालूम है हीरो मोटर्स इज टुडे अ ग्लोबल कंपनी, और अभी उन्होंने रिसेंटली हार्ले डेविडसन के साथ भी कोलैबोरेशन किया है. तो वो जब किताब पढ़ रहा था मैं, सुनील मुंजाल, इट इज आल्सो इनटू थर्ड और फोर्थ जनरेशन, और वो भी शुरुआत हुई 4 भाइयों से. और दे हैव सो मेनी पीपल इन द ग्रुप. तो उन्होंने एक चैप्टर है उनका. तो हम लोग जब बोलते हैं, जो किताब में एक चैप्टर है, तो हम लोग क्या, एक कॉमन कहावत है, फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर. तो उन्होंने वो जो चैप्टर है बुक में, उसमें लिखा था फैमिली दैट वर्क्स टुगेदर स्टेज टुगेदर. तो हाउ फ्रीक्वेंटली डू ऑल मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, एंड दिस इज एड्रेस टू एवरीबडी, how often do you eat together and what kind of conversations do you have, and what is the importance of informal dinners and how does it help fostering a sense of belonging. एक सॉफ्ट इश्यू है, बस 1-2 मिनट में इसको आप एड्रेस कर दीजिए, और तब तक मैं अपने तमाम जो दर्शक हैं तो वो खामोश ना बैठे. जो भी सवाल है प्लीज टाइप कीजिए, ताकि अभी हमारे एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद में हम सवाल जवाब लेंगे. तो प्लीज टाइपिंग योर क्वेश्चंस. तो टीम राका, बिगिनिंग विथ यू, प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन ईटिंग एंड वर्किंग टुगेदर. So actually, because it's a big family, किसी का नहीं तो किसी का कुछ इवेंट प्रोग्राम होता ही है. And उस प्रोग्राम में we all brothers, we end up in one corner discussing business. So उस बहाने हमारा communication कुछ नहीं तो कुछ basically चलता ही है. And one more thing कि फिर हमको थोड़ी firing मिलती है, क्या तुम लोगों ने business discuss करना चालू कर लिया वापस से. So we have to disperse again. But more than that, I think so हमारा daily basis पे constant communication इतना हो रहा है कि हमको वो एक अलग ऐसा कोई प्लान हम लोग नहीं करते हैं frankly, but we are constant in touch with each other. Okay, great. Yeah. So टीम डीपी, मैं आपसे वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक भाई बैठता है रतलाम, दूसरा इंदौर, और पता नहीं आप फिजिकली अलग हो. आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी है, फोन पे बात हो सकती है, लेकिन एक साथ
खाना खाने का और एक साथ फैमिली के साथ जो गेट टुगेदर होता है, उसकी क्या है अहमियत है आपकी जिंदगी में और खासकर बिजनेस में? फैमिली के लेवल पे देखिए तो हमारे रतलाम में ये कहा जाता है कि अगर फैमिली हो तो डीपी जैसी हो। हम लोग 13 भाई हैं। विकास भाई मेरे 4th नंबर पे जो अंकल है उनके बेटे हैं। बट हम 13 भाइयों में कोई ये डिफरेंसेस नहीं बता सकता है कि ये इसका रियल ब्रदर है या इसका ये कजिन ब्रदर है। जब हम साथ में होते हैं सारे एक साथ होते हैं। अभी पिछले 2-3 सालों से विकास भाई इंदौर रहने लग गए हैं। रतलाम में मैं और मेरे 2 भाई जॉइंट फैमिली में रहते हैं। एक ही हमारा किचन है, तो हम 3 भाइयों का डेली सुबह और शाम दोनों टाइम का खाना साथ में होता है। विकास भाई इंदौर रहते हैं, जब मैं इंदौर होता हूँ तो मेरा खाना विकास भाई के घर होता है। जब वो रतलाम आते हैं तो हम सब साथ में ही खाना खाते हैं। वीक में एक बार हमारा पूरा फैमिली एक साथ रतलाम में कहीं एक जगह पे मिलते हैं और सारे लोग वहाँ पे अपने अपने बिजनेस भी आपस में डिस्कस कर लेते हैं और हम लोग आपस में फैमिली टाइम भी साथ में पास करते हैं। तो एक लेवल पे जाने के बाद पैसा सेकेंडरी हो जाता है, सबसे पहले फैमिली होती है और वही हम लोगों के लिए मस्ट है। अच्छा, वेरी गुड। तो Rutha, would you like to contribute to this? Yes, Anil ji. So I would like to add that difference of opinion तो होते हैं because we are not such big family as Ranka and DP Jewelers. But yes, we are from a nuclear family. But there is always a generation gap, right? What they think, what they have seen and experienced, probably we are as a millennial and a new generation. There is always a thought differences and difference of opinion. But I feel it's a good sign of creating a strength into the family because उससे आपका और strong point बाहर निकल के आता है जब भी difference of opinion होता है which converts into the strength. So जब हमने new store launch किया अभी बड़ौदा में, so there is ये design रखना है, ये नहीं रखना वो, so there was a lot of discussion happening because we see differently. Probably our father, our another generation see things differently. But this time we have brought a very different concept, interior और हमारा जो interior designing है. It is very different from the other jewelers. We have brought a different concept into the jewelry industry to have a different experience of a customer. So because customer experience is equally very important when you entered into the jewelry or a studio. The feel of entering and creating the whole scenario itself is a very beautiful experience for a client. Yes. So that is how we bond together. एक्चुअली ये चीजें हमारे साथ होती थी आज से लगभग 10 साल पहले, जब हम लोग 1 या 2 स्टोर लेकर चल रहे थे। तब अगर ज्वेलरी हमको कहीं रखना है स्टोर में तो भी हम लोगों को लेके आना है, ज्वेलरी हमको कस्टमर के तक पहुंचाना है तो वो भी हमको ही पहुंचाना है। अभी हम लोग पूरे एक सिस्टम में आ चुके हैं। हमारी प्रोक्योरमेंट टीम बिल्कुल अलग है, जिसको हमने हमारी सेल्स टीम से कोऑर्डिनेट कर रखा है कि तुम क्या बेच सकते हो और तुम क्या ला सकते हो। तुम स्टोर में वो ज्वेलरी रखोगे जो तुम बेच सकते हो, तो उसमें हमको 2 फायदे होते हैं। डेड स्टॉक हमारा बिल्कुल इकट्ठा नहीं होता है और सेल्समैन और प्रोक्योरमेंट टीम का दोनों का एक ही एजेंडा होता है कि कहीं भी माल रुकना नहीं चाहिए, थ्रू आउट माल टर्न आउट होते रहना चाहिए। डिस्कशन होते हैं आपस में तो कई चीजों पर हो जाते हैं। कई बार हमको लगता है कि शोरूम के इंटीरियर में ये डिजाइन चेंज होना चाहिए या स्ट्रक्चर में ये होना चाहिए या सिस्टम में होना चाहिए, तो उसके लिए हमने हमारे सारे जितने स्टोर्स हैं सारे को एक यूनिफॉर्म मोड में डाल रखा है। सारी जगह एक ही तरह का डिजाइन होगा, सारी जगह काउंटर साइज एक होगा, सारी जगह हमारे पैटर्न एक रहेंगे। तो उसके लिए भी हमें ऐसा कोई डिफरेंस विशेष आता नहीं है बहुत ज्यादा। बट कभी कोई बात पे हम लोगों को आपस में सिर्फ मैं और विकास भाई ज्वेलरी लाइन में, बाकी हमारे कजिन हैं वो सारे इंडस्ट्री लाइन में, फिर भी हम लोग एक दूसरे को कहीं भी किसी से कोई बात करना है तो जिससे जो इस बात में आपके डिस्प्यूट्स हैं तो सामने सामने बैठ के सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पर्सन कोई आके हमारे डिस्प्यूटेड अगर सुधारने की कोशिश करेगा तो उसमें बात और ज्यादा बिगड़ जाती है।
तो मुझे याद नहीं कि पिछले 10 साल में मेरे और विकास के बीच में किसी बात को लेकर कोई इस तरह की बात हुई हो। नहीं समझ गया। अभी अपना ये आखिरी मुद्दा है, बहुत ही अहम मुद्दा है, जो मैंने आपको पहले भी आपसे शेयर किया था कि द रोल ऑफ विमेन। देखिए अपनी जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है ना, it is surviving only because of the patronage that we are receiving from the lady customers. तो आप अगर देखेंगे तो every lady is the CEO, chief emotional officer. ये परिवार को बांधे कौन रखता है? ये लेडी ही कार कर सकती है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि SK Gold, सागर is involving his wife day-to-day business they are doing together, and she is equally sharing this session with all of us, which is really good. It is a sign of progressive business approach. I also appreciate the fact that team Ranka, तेजपाल जी की दोनों बेटियां जो अब तक पढ़ रही हैं, लेकिन they are also taking interest in the business. तो अभी आपको एक ही पॉइंट शेयर करता हूँ कि जो टाइटन इतनी बड़ी कंपनी है, तो उसमें there are 20 ladies who are occupying positions of leadership. देखो उनकी चीफ डिजाइन ऑफिसर लेडी, उनके जो वॉचेस की सीईओ है वो लेडीज, ऐसे 20 ladies are there. Because when we speak about VUCA, तो लास्ट जो ए है ambiguity. See, women are emotionally more stable than men. Secondly, they are well equipped to take decisions under stress. So they have many qualities. So सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि involve more and more women, not only from your family but recruit more women, because jewelry is all about women consumers. And तो बस मुझे यही पूछना था कि बाकी सब जगह तो बात कर ली, डीपी में व्हाट इज द रोल women play as family member and as the team? So definitely jewelry is all about women. अगर हम समझते हैं तो 90-95% कंट्रीब्यूशन वुमेन्स का ही होता है ज्वेलरी में, हमारे एज ए कंज्यूमर की बात करें तो। एंड अभी रिसेंटली जब से मैं इंदौर मूव करा हूँ और हम लोगों ने अभी मेरे भी बच्चे थोड़े से अब बड़े हो गए, सो माय वाइफ थोड़ा फ्री रहती है, तो शी हेल्प इन लाइक कि अभी हमें हाउसकीपिंग किस तरीके से करना है, हाउसकीपिंग में हेल्प करती है। एंड लाइक अपना यूनिफॉर्म जो होता है, यूनिफॉर्म को क्या यूनिफॉर्म होना चाहिए, फीमेल का यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए, मेल का यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए, तो उसमें वो अपना इनपुट देती है। स्ट्रक्चर आपका एडमिन किस तरीके का, पैकेजिंग क्या होनी चाहिए, इसमें काफी सारा हेल्प मिलता है हमें। रुकावट के लिए खेद है। हमारी चीफ इमोशनल ऑफिसर ऑफिस से घर आई है तो दरवाजा खोलने के लिए उठा था। तो मैं सिर्फ आपसे एक ही इन अ ह्यूमरस वे आई एम टेलिंग यू, बट प्लीज टेक इट इन द राइट स्पिरिट। मैंने डीपी ज्वेलर्स और रांका ज्वेलर्स दोनों की वेबसाइट देखी। आप तो कहते हो कि वी आर इन्वॉल्विंग मोर विमेन, लेकिन आपके वेबसाइट पे कोई भी लेडी का फोटो नहीं है। तो आप इस बारे में सोचिए, इन्वॉल्व मोर विमेन एंड आई एम श्योर दे विल कंट्रीब्यूट टू ग्रेट थिंग्स एंड विल बी मोर। अगर देखिए तो डीपी ज्वेलर्स की डायरेक्टर जो है मेरे छोटे ब्रदर संजय भाई की मिसेस है, रेणु कटारिया। हाँ, लेकिन उनकी तस्वीर तो मुझे दिखाई नहीं थी। चलो, मेरे कहने का मतलब क्या, डोंट टेक इट लिटरली, बट उसमें फायदा आप ही का होने वाला है। विकास भाई की वाइफ भी काफी सारे इनपुट दे रही है। बेसिकली वी आर मारवाड़ी फैमिली एंड हमारे घर की जितनी लेडी होती है सारी हाउस वाइफ ही है, और मुझे लगता है कि उनके लिए अभी वो ज्यादा जरूरी है कि इतना हमारा बड़ा परिवार है, आज 100 लोगों का परिवार है, उनको संभाल के और जॉइंट फैमिली आज भी अगर हमारे साथ रह रही है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। चलो अनिल जी, आपने बहुत अच्छी तरह से मुद्दा टाल दिया। तो इस पर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, सो लेट्स टेक दोस क्वेश्चंस। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक या दो है। तो एक कोई अश्विन जी हैं, उनका सवाल ये है
how to hire a talented and trustworthy employee in a sensitive business such as jewelry. Anybody can answer, no problem. Sorry. Vastupal, would you like to venture? Yeah. Would you like to take this? Yeah. See, hiring a talented is wo resume dekh ke we can hire them. So what we do is trustworthy employee is always tested over a period of time. So we have a special training room, 40 people classroom banaya hum logon ne, where we have done tie up with VIT University. So their teachers, tutors, they come and teach our staff on a lot of skills like work-life balance bolo, salesmanship, marketing, entrepreneurship, every sort of training, English speaking classes, we try to give them. So we are creating talent, like every day learning is happening. So we identify people who are weak in certain areas in our organization, और उनको वो particular course करने के लिए we nourish them and we make them ready for that. So this is how we are creating talent, in-house talent, because we know they are already trustworthy and they won't leave the organization for another 5-10 years. So when we see them, we try to invest on them and we create a good talent. So this is our way of creating talent. Fantastic. So I think we have come towards the end of the session. और सवाल भी मेरे ख्याल से एक ही था और बाकी सारे compliments है लोगों को अपना. Anand ji, there's one more question by Mr. Sanket Kakadia. So can you read it out? It's really nice to have knowledge to. It's a comment. What should we? No, it is followed by a question. What should we focus on when entering the jewelry business? Okay. He is into diamond manufacturing. Okay. So DP, team DP, आपको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा because आपको मैन्युफैक्चरिंग भी कर चुके हैं और डायमंड ज्वेलरी तो अच्छी सेल है आपकी. तो मैं चाहता हूँ आप इस सवाल का जवाब दीजिए या फिर सागर या दोनों भी दे सकते हैं. एक के बाद एक दोनों दीजिए जवाब. स्टार्ट विद सागर. I think No problem. Sagar is not there. So while entering into the jewelry business, first thing is a market benchmarking. Which market and the area you would like to pick and choose is a very important. The periphery of the area, for example, the city, region. So that is a very initial step of, to done a research while entering or opening your store. Okay, great. So again, yes, jewelry is used market. तो आपको क्या exactly what do you want to do? अभी आपको कैसे आप enter होना चाहते हैं? आपको कौन सा segment आप चाहते हैं? Jewelry में भी आपके पास में एक mass market है, आपके पास में H&I market है. तो आप किस तरीके से आप गोल्ड ज्वेलरी फोकस करना चाहते हैं, डायमंड ज्वेलरी फोकस करना चाहते हैं? सो ये स्पेसिफिक डायमंड ज्वेलरी के बारे में पूछिए. स्पेसिफिक अगर आप डायमंड ज्वेलरी के लिए आप एंटर करना चाहते हैं तो आप कौन से शहर या कौन सी जगह पर आप करना चाहते हैं? वो एक मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, वो मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं. हाँ. ओके. सो डेफिनेटली डायमंड मैन्युफैक्चरिंग इज अ गुड बिजनेस. और आप कौन से एरिया में आप करना चाहते हो? अगर आप छोटे शहर लाइक रतलाम जैसे अगर मैं बात करूँ या इंदौर जैसे शहर में अगर बात करूँ स्टार्ट करने की, तो यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पर आपको कारीगर मिलना थोड़ा सा टफ हो जाता है. बट अगर आप बॉम्बे या कोई बड़ी सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर आसानी से आप कर सकते हैं डायमंड मैन्युफैक्चरिंग. वहाँ पर आपको टैलेंट भी अवेलेबल रहता है, आपको वहाँ पर सारे कारीगर मिलते हैं, वहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सब कुछ आपको मिल जाता है. So टीम जीजेसी, कोई जीजेसी डायरेक्टर हैं कुछ बात करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम. अदरवाइज वी हैव फिनिश्ड टुडेस सेशन. Sir, I think we can close it. I don't see any director present at the moment. Okay. So thank you very much all the panelists. आपने अपना कीमती समय दिया, आपके अच्छे इनपुट्स मेरा ख्याल है जो हमारे दर्शक है उनको भी आज कुछ सीख के जाएंगे
और हमारे जो दर्शक हैं, आपके बगैर तो कोई सेशन हो ही नहीं सकता। बोलने वाले सब हैं, अगर सुनने वाला कोई नहीं है तो बात नहीं बनती है। इट टेक्स टू टू टैंगो। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो भी आप सीखे हैं, तो मैंने आपको 2 किताबों का नाम दिया। कार्तिकेय की बुक है मेकिंग ऑफ ए हीरो, तो आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री और फैमिली बिजनेस के बारे में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जाइए। सो थैंक यू वेरी मच अनिल जी। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. चलो, thank you, everyone. एक साथ मिले हैं। Thank you, everyone. थैंक यू गुड बाय। Bye. Goodbye. बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।